Hello everyone, welcome back to BioGyan. So in the previous video we were talking about photosynthesis introduction, and today we will complete that introduction part. So without further delay, let's start. Okay. So in our previous video we are talking about the green plant along with light, mainly sunlight, carbon dioxide and water. It will give carbohydrate and it release oxygen. So in our previous video, we have already discussed about light, your carbon dioxide and water. So today we will be focusing on the green plant and the organelles of the green plants that plays a key role in this photosynthesis process. Okay, so you have come across in your day-to-day life, lots of green plants. Okay, so they have a stem or a shoot, branches, leaves, root, etc. So you pretty much know about the green plant. So if we take a leaf and we crush it, like the experiment you did in your 11th and 12th, where you crush the leaf and you you take a small part and put it under the microscope and see certain green cells, na small cells. Okay, so those cells are nothing but those are the green cells. So okay, let's take a plant cell and zoom into it. So what we are gonna see? We are gonna see a cell wall. Okay, then a cell membrane. So inside the cell membrane, there are lots of organelles. So I have mentioned few organelles here, but there are lots of other organelles, just like your endoplasmic reticulum, your Golgi body, and so on. So, and what else? Mitochondria, your chloroplast, and cytosol. So chloroplast, now this photosynthesis process mainly occur inside the chloroplast. Why? Because it has certain green pigments, and we call it green cells. So as written here, chloroplast is a photosynthetic apparatus. It has green pigments. It is self-replicating, semi-autonomous organelle, and it shows endosymbiosis. Okay, so here maybe a doubt arise, what is this self-replicating and semi-autonomous? Fine. So self-replicating, we call those organelles as self-replicating organelles. Those have the capacity to divide itself by its own. Okay, so क्या होता है, हमारा ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उसके पास उसका अपना डीएनए भी होता है, उसके पास उसका अपना आरएनए पॉलीमरेजेस भी होते हैं, वो अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करता है, ठीक है, वो सब कुछ मतलब अपने बलबूते पे करता है, वो इस चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता. सो इसीलिए हम उसको कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग. बट कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट खुद ब खुद सिंथेसिस नहीं कर पाता, तो वो चीज न्यूक्लियस से इंपोर्ट करता है. सो इसीलिए हम उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस. वो खुद का सामान खुद तो बनाता ही है, पर कुछ सामान उसके पास नहीं होता, तो इसीलिए वो चीज बाहर से इंपोर्ट करता है. ठीक है, जब आप लोग घर पे बहुत सारा चीजें बनाते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनाते हो, बट कुछ चीजें आपके घर में नहीं होती, तो आप क्या करते हो, बाहर जाते हो, बाहर से लेके आते हो. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट तो बाहर जाएगा नहीं ना, तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस से सब चीजें एक्सपोर्ट करता है. ठीक है, तो आते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर. सो यहाँ पे ना बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट हम अभी हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे कि हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीजें लाइक इंपॉर्टेंट है, उसी के प्रोस्पेक्टिव में हम अभी बात करेंगे. तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में हमारे होते हैं दो लेयर. ठीक है, एक होता है आउटर लेयर, ये आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं. ओके, सो एक पॉइंट में क्लियर कर देती हूँ, मेम्ब्रेन और लेयर दोनों डिफरेंट होते हैं. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, बट लेयर होता है सिंगल लेयर या फिर बाई लेयर, ऐसे लेयर्स होते हैं. ठीक है, तो हम उसके बारे में आगे जानेंगे, पर अभी के लिए आप इतना जानो कि क्लोरोप्लास्ट के पास ना एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो कि है यूकैरियोटिक ऑरिजिन, और एक होता है इनर मेम्ब्रेन जो कि है हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. आपने पिछली स्लाइड में देखा था, मैंने लिखा था एक एंडोसिम्बायोसिस. ठीक है, तो अभी पता चला कि क्यों है ये एंडोसिम्बायोसिस, क्योंकि इसका एक लेयर है यूकैरियोटिक ऑरिजिन और दूसरा लेयर है इसका प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन. ठीक है, तो इसके पास होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. ठीक है, जिसमें बहुत सारे जीन होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा हुआ VIP-P1 जीन, तो क्या है उसका फुल फॉर्म, वो है वेसिकल इंड्यूसिंग प्रोटीन इन प्लास्टिड 1. वो है हमारा VIP-P1 जीन जो कि बनाता है VIP-P1 प्रोटीन. तो इसका क्या रोल है हम उसको आगे पढ़ेंगे. ठीक है, और क्या क्या वो बनाता है, वो बनाता है D1 प्रोटीन और भी बहुत सारी चीजें बनाता है. तो आज हमने जैसे पढ़ा कि ये है सेमी ऑटोनोमस इन नेचर. ठीक है, तो फिर इसके पास इसका अपना है आरएनए पॉलीमरेज, खुद का आरएनए पॉलीमरेज भी है. ठीक है,
मतलब सारे जेनेटिक मटेरियल इसके पास खुद के हैं, बट कुछ प्रोटीन इसके पास नहीं है जिसकी वजह से वो इंपोर्ट करता है हमारे न्यूक्लियस में। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके पास है, देखो ये है एक थैलेकॉइड और दीज आर कॉल्ड ग्रैनुलम, और ये जो है ना ये है हमारा स्ट्रॉम लैमेला। तो ये सब क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, ये सब आगे आएगा। अब बस इतना जानो कि क्लोरोप्लास्ट ऐसा है और इसके स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, और ये जो डॉट 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 आपको दिखाई दे रहे हैं ना वो हमारे हैं स्ट्रोमा। वो ऐसा मतलब जैसे साइटोसोल होता है ना, तो वैसे स्ट्रोमा वैसे होता है, ठीक है, वो लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसके अंदर अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सब होते हैं। तो ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जानते हैं हम स्ट्रोमा के बारे में। तो स्ट्रोमा क्या था, आपने देखा ना कि ये जो सब डॉट 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 था जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स थे, उसको हम बोलते थे स्ट्रोमा, ठीक है। तो वो स्ट्रोमा में क्या होता है, हमारा रुबिस्को नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि रुबिस्को है एक मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो रुबिस्को लाइएस फैमिली से बिलोंग करता है और वो है कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम, ठीक है। और इसका डुअल रोल होता है, एक होता है कार्बोक्सिलेशन और एक होता है ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो डुअल रोल मतलब क्या, सपोज आप एक स्टूडेंट हो, ये है रुबिस्को एंजाइम, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया है, ऐसा रुबिस्को एंजाइम नहीं दिखता, रुबिस्को एंजाइम ऐसा दिखता है, ठीक है। तो मैंने क्यों बनाया है ये स्ट्रक्चर, मैं अभी उस पर आऊंगी। तो मुझे पहले डुअल रोल समझाने दीजिए। तो डुअल रोल क्या है, सपोज एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है एक्स, तो वो अपने डिपार्टमेंट का सीआर भी है और वो एक सेक्रेटरी भी है अपने कॉलेज में। तो वो क्या करता है, डबल फंक्शन परफॉर्म करता है, वो एक लड़का डबल फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वहां पे उसका डुअल रोल चल रहा है। तो वैसे ही ये रुबिस्को एंजाइम का ना डबल रोल चलता है। क्या करता है ये, कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजनेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो बोथ ये जो रुबिस्को एंजाइम है ना, ये सपोज इसका है एक्टिव साइट, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम का ये है एक्टिव साइट, तो रुबिस्को एंजाइम का ना ये है एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिव साइट मतलब क्या है, एक एंजाइम का एक्टिव साइट होता है जहां से वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और सबस्ट्रेट के साथ वो बाइंड करके फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये सपोज रुबिस्को एंजाइम एक है, आप इसे मान लो कि ये है एक रुबिस्को एंजाइम और ये है उसका एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट पे ना बोथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दो मॉलिक्यूल इसके एक्टिव साइट पे बाइंड कर सकते हैं, यहाँ बाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये परफॉर्म करता है डुअल रोल, जो कि है कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, ओके। सो मे बी क्वेश्चन अराइज कि दोनों के साथ ये बाइंड करता है ना, तो एक साथ तो दोनों मतलब एक ही टाइम पे दोनों के साथ बाइंड नहीं कर सकता होगा, और तो और हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है। तो नाउ क्वेश्चन अराइज कि रुबिस्को एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ कौन बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट को तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, बट एनवायरमेंट में ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। तो रुबिस्को एंजाइम का कंस्ट्रक्शन ही कुछ ऐसे हुआ है, ऑल्दो हमारे एनवायरमेंट में एयर में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर भी वो कार्बन डाइऑक्साइड ही आके रुबिस्को एंजाइम के साथ बाइंड करता है और हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्लांट हमारा अपना फूड बनाता है, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम हुआ क्लियर। देन फिर आते हैं रुबिस्को एंजाइम का थोड़ा स्ट्रक्चर जान लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा 16 सब यूनिट का, 16 सब यूनिट का हमारा बड़ा सा रुबिस्को एंजाइम है, बट ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है लार्ज और एक है स्मॉल। तो जो आपने प्रीवियस में पढ़ा था सेमी ऑटोनोमस, मैंने बोला था कि कुछ प्रोटीन इंपोर्ट होते हैं कहाँ से, न्यूक्लियस से। तो ये जो स्मॉल सब यूनिट है ना वो इंपोर्ट होता है आपके न्यूक्लियस से। ये दोनों ही 8 सब यूनिट से बने हैं, 16 सब यूनिट डिवाइडेड है अपना 8 और 8 में, लार्ज में भी 8 ही सब यूनिट है और स्मॉल में भी 8 ही सब यूनिट है। बस डिफरेंस क्या है कि लार्ज सब यूनिट का जो डीएनए है ना वो क्लोरोप्लास्ट खुद बनाता है, उसका खुद का है, बट जो स्मॉल सब यूनिट का है वो न्यूक्लियस से हमारा इंपोर्टेड होता है, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स कम टू ग्राना और ग्रैनुलम, ठीक है। सेम ही चीज है, सिंगुलर प्लूरल का बस डिफरेंस है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं प्रीवियस, हाँ, तो ये देखिए ये जो सब छोटा छोटा सा मतलब था ना, ऐसे कॉइन के तरह अरेंज हुआ था हमारा, तो वही है आपका ग्राना और ग्रैनुलम, ठीक है। तो इसको मैंने बस उस स्लाइड में जूम इन कर दिया है, देखिए। तो ये रहा आपका ग्रैनुलम।
तो ये ना ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज रहता है। देखिए मेरा ये हाथ ऐसे अरेंज हुआ है, मेरा ये पाम और ये जो अपर सरफेस है ये क्या है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सरफेस को हम क्या बोलते हैं, अप्रेस्ड मेम्ब्रेन, जो जो टच कर रहा है। देखिए ये टच कर रहा है, सपोज ये पेन है, ये पेन है और मेरा फिंगर है, ओके। सपोज ये दो फिंगर ले लिए जी, ये एक दूसरे को टच कर रहा है ना यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। और ये जो साइड से ना हमारे, इसको बोलते हैं हम नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। यू कैन सी हियर, ये जो सब टच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये है आपके अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। और ये जो सब, ये जो साइड में जो है, these whole things, these are your non अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो और काम की बात क्या है इसमें, आपके अप्रेस्ड मेम्ब्रेन में ना फोटोसिस्टम 2 होता है, और सॉरी नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 1 होता है। और बोथ अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम B6-7 कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये क्या है साइटोक्रोम B6-7 कॉम्प्लेक्स, PS2, PS1, ये सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब प्रेशर पड़ता है ना ये ग्रैनी के ऊपर, जब प्रेशर पड़ता है तो ये ऐसे ब्रेक हो जाते हैं। किसी भी चीज के ऊपर आप ज्यादा प्रेशर दोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा ना। सपोज यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये जो मेम्ब्रेन था वो अप्रेस्ड मेम्ब्रेन था, वहां पे ब्रेक हो गया। तो ये दो तरह की चीजें फॉर्म करता है, क्या, एक है इनसाइड आउट। इनसाइड आउट मतलब यहाँ से जो अंदर का चीज है, सपोज ऐसे रहा और यहाँ ये जो पोर्शन है ना ये बाहर की तरफ हो जाएगा, जो अंदर की चीजें हैं वो बाहर की तरफ हो जाएंगी, उसको हम बोलते हैं इनसाइड आउट। एज अंदर की चीजें बाहर हो रही है तो वो तो अप्रेस्ड मेम्ब्रेन में ही होगा। और राइट साइड मतलब जो बाहर की चीजें, मतलब ये नॉन अप्रेस्ड में। समझे ग्राना में क्या होता है, ग्राना कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। ऐसे मतलब कॉइन जैसे रखते हैं ना, एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे कॉइन्स जो हम रखते हैं, तो वैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेना। नाउ लेट्स मूव टू आवर थाइलाकॉइड, ठीक है। तो जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है थाइलाकॉइड, तो ये थाइलाकॉइड कैसे फॉर्म होता है, तो हमारा पहला डायग्राम की तरफ जाते हैं। देखो ये है तुम्हारा ग्राना, यहाँ पे मैंने एक मेंशन किया था थाइलाकॉइड, और एक एंजाइम मैंने मेंशन किया था, सॉरी प्रोटीन, जो कि है VIP-P1 प्रोटीन। तो अभी उसका रोल आएगा, ठीक है, क्या रोल आएगा अभी वो भी हम देखेंगे। yes. जब ये क्या है हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये जो देख रहे हो इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन में एक इनफोल्डिंग होती है। सपोज ये है मेरा इनर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे एक इनफोल्डिंग होगी। इनफोल्डिंग होगी मतलब ये अंदर की तरफ ऐसे घुस के एक वेसाइकल की तरह एक स्ट्रक्चर बना लेगा, समथिंग लाइक दिस, ओके। ठीक, ये सपोज इनर मेम्ब्रेन है ना, तो ये ऐसे अंदर की तरफ हो जाएगा और ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा जो कि बनेगा हमारा थाइलाकॉइड। तो कौन तोड़ता है इसको, वो जो अंदर की तरफ ऐसे वेसाइकल लाइक होता है, और उसको कौन तोड़ता है, उसको VIP-P1 प्रोटीन वो उसको तोड़ता है और थाइलाकॉइड बनते हैं। तो पता चला थाइलाकॉइड कैसे बनते हैं और वो VIP-P1 प्रोटीन का क्या रोल था, ठीक है। तब ठीक, तो ऐसे थाइलाकॉइड का फॉर्मेशन हुआ। हमारा वो जो VIP-P1 जीन है वो VIP-P1 प्रोटीन बनाता है, और वो मतलब जो इनर फोल्डिंग है ना हमारा क्लोरोप्लास्ट का, उसे थाइलाकॉइड बनाता है। तो थाइलाकॉइड में क्या है, तो ये देखिए, तो पहले तो ये है हमारा बाइलेयर, ठीक है, मतलब ये जो हमारा लिपिड्स है ना, लिपिड्स के अंदर प्रोटीन है, तो ये है हमारा लिपिड बाइलेयर, बाइलेयर का। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एक सर्कल देख पा रहे होंगे, तो उसको हम कहते हैं क्वांटाजोम और फोटोसिस्टम 2। ये जो आप क्रॉस साइन देख रहे हो उसको हम कहते हैं कैरोटीनॉइड्स, ये है बीटा कैरोटीनॉइड। सो ये ना एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, जो कि प्लांट्स खुद ही रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, क्योंकि उसको एक तो बचना होता है हाई लाइट से, क्योंकि अगर ज्यादा लाइट आएगा तो वो प्लांट को डैमेज करेगा, तो उससे बचने के लिए वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी रिलीज करता है। बिसाइड्स दिस इसके और भी अदर फंक्शंस हैं। तो उसके साथ ये ट्रांस मेम्ब्रेन दो प्रोटीन है, दो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन D1 और D2। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है, सपोज ये है आपका लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो जो इसके अंदर से जाएगा, मतलब ये इस लेयर में जो रहेगा, ऐसा नहीं कि घुस के चला गया, नहीं, यहाँ पे ये जो रहेगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर, या फिर बस ऊपर ही है या फिर बस नीचे ही है, ऐसा नहीं है। जो पूरा इस मेम्ब्रेन के अंदर से देके जाएगा उसको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आप सेल बायोलॉजी में पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा, तो इसके पास ये जो नीचे है ना, ये जो आप देख पा रहे होंगे, इसको हम कहते हैं WOEC। व्हाट इज दिस, वाटर
ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यही वो मतलब है जो कि इलेक्ट्रॉन का मतलब आदान प्रदान करवाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में हमारे लाइट रिएक्शन में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है हमारा टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन जेड। तो ये भी क्या करता है, ये हम मतलब आगे वाले स्लाइड में इसके बारे में हम देखेंगे। अब बस अभी देख लो कि थाइलाकॉइड में क्या क्या है, क्या क्या प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट हमारा है, इसको हम कहते हैं प्लास्टोसियानिन, और ये है हमारा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये है हमारा प्लास्टोक्विनोन। और सेम सेम जैसे हमारा यहाँ था ना क्वांटोसोम, यहाँ पर भी है दूसरा क्वांटोसोम, पर इसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम 1। ठीक है, इसके पास भी प्रोटीन है, बट ये अलग अलग प्रोटीन है, सेम D1 D2 नहीं है, अलग अलग प्रोटीन है। बस इसका क्या सेम है, वो जो कैरोटिनॉइड्स है ना, ये जो एक्स टाइप का, वो बस सेम है, बाकी सब डिफरेंट है। इस पे डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट गिरती है। वो क्या है क्या नहीं है, इसको हम आगे पढ़ेंगे हमारे। ठीक है, तो ये है हमारे FNR और ये है एक हमारा फेराडॉक्सिन। ठीक है, ये जो हमारा FNR है और ये जो एटीपी सिंथेसिस है, ये दोनों एनर्जी मतलब प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका फेस है आउटसाइड में। ये जो थाइलाकॉइड है, ये स्ट्रोमा की तरह फेस किया हुआ है ना, आप यहाँ पे देखो। इन दिस फिगर जो हमने फर्स्ट देखा था क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रोमा था, यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर है हमारा थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड के अपर सरफेस में जो जो सब हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, उसका फेस कहाँ रहेगा, हमारा स्ट्रोमा की तरफ, और जो अंदर की तरफ रहेगा उसका फेस रहेगा हमारे ल्यूमेन के अंदर। तो ल्यूमेन क्या है, यही है जो स्पेस देख रहे हो ना, वही है हमारा ल्यूमेन। तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, उसमें वाटर और सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ल्यूमेन में वाटर और सॉल्ट हमारा प्रेजेंट है, तो वहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ठीक है, प्रोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर और हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो वो क्या है ये चीजें, मतलब प्रोटो ऑक्सीडेशन क्या है और वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या है। फोटो मीन्स लाइट, लिसिस मतलब टूटना। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट और लिसिस मतलब टूटना। जो कंपाउंड लाइट के प्रेजेंस में टूटता है, और ऑक्सीडेशन होता है मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन और फोटोलिसिस, लाइट के प्रेजेंस में टूटना। तो ल्यूमेन में वो जो वाटर और सॉल्ट है, और वाटर जो टूट के ऑक्सीजन हमारा बनाता है ना, तो उसके ऊपर एक साइंटिस्ट ने एक उसको एक मैकेनिज्म कहते हैं, तो वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर वो मैकेनिज्म गिरा है जिसको हम कहते हैं कॉक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, ये है हमारा वाटर WOEC। ठीक है, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या है, ये जो क्या है SO S1 S2 S3 S4 मैं बताऊंगी, पहले आप एग्जैक्टली जान लो कि क्या होता है। तो ये क्या करता है ना, लाइट इस पे गिरा, मतलब दो फोटोन, मतलब लाइट गिर रहा है। ठीक है, लाइट को पिछली पिछली वीडियो में हमने बताया था ना कि उसको फोटोन भी कहते हैं हम। तो ये फोटोन है, दो फोटोन इसके ऊपर गिरा। तो फिर इसने क्या किया, दो एक हाइड्रोजन एटम और एक इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर आए। फिर क्या हुआ, फिर एक बार लाइट गिरा, फिर एक हाइड्रोजन एटम या फिर प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आए। ऐसा होके वो S4 स्टेज में पहुंचा है। S0 को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और S4 को हम बोलते हैं ना, वो अपना मतलब मैक्सिमम रीच कर गया, मैक्सिमम स्टेज पे। ठीक है, तो कैसे रीच किया, मतलब S0 से, मतलब S4 है मतलब उसमें मिनिमम एनर्जी, उसमें एनर्जी नहीं है, और S4 उसका सबसे हाईएस्ट स्टेज है, मतलब उसपे मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। तो जब ये जो एनर्जी डिफरेंस है एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ, जब वो इक्वल हो जाता है, तब एक एटम एक स्टेज से अपने दूसरे स्टेज में जाता है। ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री है, पर हमें अभी इस पे फोकस करना है। तो क्या है ये, आपको पता चला, जैसे जब वो S0 से S1 में जाता है ना, जब लाइट गिरता है वो S0 से S1 में जाएगा, तो वो दो दो प्रोटॉन रिलीज कर देगा। फिर जब जाएगा S1 से S2, फिर दो रिलीज करेगा। फिर जब S2 से S3, फिर दो रिलीज करेगा। ऐसे इसने उसने कितने रिलीज किए, मतलब कितने एटम्स रिलीज किए, उसने 4 प्रोटॉन किए। देखो, एक हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, 3, 4 प्रोटॉन रिलीज किए, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। ठीक है, जब लाइट गिरता है और वो कंप्लीट प्रोसेस होता है, उसमें है ना हमारा 2 वाटर मॉलिक्यूल से 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और एक ऑक्सीजन। ये बात आपको याद रखनी है, आप हो सके तो आप नोट डाउन कर लो या फिर याद ही रख लो कि
फोटोसिंथेसिस में 2 वाटर मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन एटम रिलीज होता है। तो उसका वो जो होल प्रोसेस है ना, कैसे होता है वो रिएक्शन, वो मैं यहाँ पे इंसर्ट करना भूल गई हूँ, मैं उसको आपके कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी, वो पूरा प्रोसेस कैसे होता है, वो जो होल रिएक्शन वो कैसे होता है, आई विल राइट दैट डाउन। तो यहाँ पे जो होल प्रोसेस होता है इसमें कौन कौन से को फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा एक तो कैल्शियम होता है, एक तो क्लोराइड होता है, और 4 मैंगनीज होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, मे बी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये था हमारा ल्यूमेन। क्वांटिज्म, अब हमारा जो थैलेकॉइड के बाइलेयर में था, वो क्वांटिज्म जो था PS2 PS1 वो जो था, वो ऐसे 3 सर्कल में डिवाइड होता है। तो ऐसा एक बॉल है बाहर एक लेयर है उसका, अंदर एक लेयर है, और बीच में सेंटर में एक लेयर है। ठीक है, ऐसा एक पूरा वो बॉल है। तो उसके जो फर्स्ट लेयर है, वो जो फर्स्ट सर्कल है, उसमें है हमारा बीटा कैरोटीन। इसको मैं बता चुकी हूँ कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, और सेकंड टायर में क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल बी होता है, जो कि 70 इन नंबर के है। और जो जो सबसे इनर में होता है, जहाँ पे रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये सारे मिलके ना, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, ये सब मिलके बनाते हैं एक क्वांटिजोम। ठीक है, ये बस इंफॉर्मेशन के लिए था, आप इसको याद कर लीजिए। सो हियर वी आर डन विद आवर इंट्रोडक्शन। जो थिंग हमने स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन, हमने इसको कंप्लीट कर दिया। हमने देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो में लाइट के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, वाटर के बारे में। आज हमने देख लिया कि ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट्स में कौन कौन है जो ये सब करते हैं, तो ये सब हमने देख लिया। तो वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन, एंड इन माय next videos I will be teaching you the photosynthesis, light reaction, dark reaction. I think those videos will be bit lengthy, but आप पेशेंस के साथ सुनना, आप अच्छे से समझ पाओगे। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप अगर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो इसके रिलेटेड और आपको डाउट है, आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई ऑल दोज कमेंट एंड आई विल क्लियर ऑल दोज डाउट। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली।